السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ، ان کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے شیعہ ہوں، چاہے قادیانی ہوں، سب علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ سے واقف ہیں۔ تو علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے برطانیہ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک دعوت فکر دی تھی۔ وہ دعوت فکر کیا تھی؟ علامہ صاحب نے کہا کہ میں اپنے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے ہر اس شخص کے ساتھ جو اتفاق کرنے کے لیے تیار ہے وہ آئے، ہمارے ساتھ دلیل سے گفتگو کرے۔ دلیل وہ ہوگی جو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان کی۔ آؤ ہمارے ساتھ دلیل سے گفتگو کرو۔ جس کا ساتھ رب کا قرآن دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دے، وہ مسلک سچا، اور جس کا ساتھ رب کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ دے تو وہ اپنی بات چھوڑ دے۔ تو یہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے ایک دعوت فکر دی تھی۔ تو اس کے متعلق بعض حضرات جن کو شہرت کا بڑا شوق ہے، جو خود کو مشہور کرنا چاہتے ہیں، وہ علامہ صاحب کے اس بیان کا رد کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، آئیے ذرا سنتے ہیں۔ پہلے علامہ صاحب کا وہ بیان بھی سنیں اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیں۔ اور جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے نمائندگان، ان کے عہدیداران کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ہم آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے دنیا کے ہر اس شخص کے ساتھ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور اتفاق کرنے کے لیے تیار ہیں، آؤ ہمارے ساتھ دلیل سے گفتگو کرو۔ دلیل وہ ہوگی جو رب نے اپنے قرآن میں بیان کی یا محمد نے اپنے فرمان میں بیان کی۔ آؤ اپنا مسلک تم لے کے آ جاؤ۔ اپنی دعوت ہم لے کے آ جاتے ہیں، جس کا ساتھ قرآن دے، محمد کا فرمان دے، وہ سچا۔ جس کا ساتھ رب کا قرآن اور محمد کا فرمان نہ دے، وہ اپنی بات کو چھوڑ دے۔ تو ناظرین کرام، یہ چیلنج تھا احسان الہی ظہیر کا کہ بھائی آؤ ہمارے ساتھ بس قرآن حدیث، جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ سچا ہے، جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے وہ جھوٹا ہے۔ یعنی کھلم کھلا چیلنج کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، سب کو بلا رہے تھے، تمام مسالک والوں کو، کہ بھائی آپ بس قرآن و حدیث کے اگر مطابق آپ کی بات ہے تو ہم قبول کر لیں گے، اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہم قبول نہیں کریں گے۔ لیکن یہ چیلنج خود بخود دم توڑ گیا۔ کیسے دم توڑ گیا؟ آپ سوچیں گے بھی غیر مقلد سوچیں گے بھی ہم نے تو ایسی بات جو ہے نا اس بات سے ہمٹے نہیں ہیں۔ بالکل وہ اس بات سے ہٹ گئے، کیونکہ اس دور میں بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن و حدیث ہی سناتے ہیں لیکن غیر مقلد انہیں گمراہ ٹھہراتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا ان کا بھی دعویٰ ہوتا ہے، دلائل قرآن سے دیتے ہیں، احادیث سے دیتے ہیں، لیکن غیر مقلد ان کو گمراہ ٹھہراتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال انجینئر علی مرزا ہیں، وہ بھی تو قرآن سناتے ہیں، حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ جی معزز سامعین، تو آپ نے سن لیا کہ علامہ صاحب تو ایک دعوت فکر دے رہے ہیں تمام جماعتوں کو، چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے بریلوی ہوں۔ علامہ صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور اتفاق کرنے کے لیے تیار ہے، آؤ ہمارے ساتھ دلیل سے گفتگو کرو۔ یہ ایک دعوت فکر تھی، لیکن یہ شخص جو ہے وہ علامہ صاحب کے اس دعوت فکر کو بار بار چیلنج کہتا ہے۔ چیلنج بھائی، چیلنج اور دعوت فکر کے اندر فرق ہے۔ چیلنج میں جو ہے وہ خود کو بندہ سچا ہی سمجھتا ہے، لیکن اس کے اندر علامہ صاحب کہتے ہیں کہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے اگر ہماری بات سچی نہیں ہے تو ہم اپنی بات چھوڑ دیں گے، اگر تمہارا مسلک سچا نہیں ہے تم اپنی بات چھوڑ دو۔ ایک دعوت فکر دے رہے ہیں اور وہ سب کو دے رہے ہیں، اس میں خود کو بھی شامل کر رہے ہیں، لیکن یہ حضرت اس بیان کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ علامہ صاحب نے ایک چیلنج دیا جو خود بخود دم توڑ گیا۔ دم کیسے توڑا؟ اس نے ایک مثال دی، کہتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا بھی قرآن و حدیث سناتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اہل حدیث گمراہ ٹھہراتے ہیں۔
भाई उसको सिर्फ अहले हदीस गुमराह नहीं समझते, उसको अहले हदीस भी गुमराह समझते हैं, देवबंदी और बरेलवी भी गुमराह समझते हैं। अगर देवबंदी और बरेलवियों के नज़दीक मोहम्मद अली मिर्ज़ा सच्चा है तो फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या करने गए थे जेहलम, किस लिए गुफ्तगू करने गए थे उसके साथ, और हनीफ कुरैशी क्यों गए थे वहां? भाई कुरान और हदीस, वो कौन सी कुरान और हदीस सुनाता है? वो कहता है सहाबा इकराम को बागी कहता है, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शान में तनकीस करता है, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुगीरा बिन शुअबा रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन सहाबा इकराम को, इसके अलावा दीगर कई सहाबा इकराम के शान में तनकीस करता है, सहाबा इकराम को बागी कहता है, और यहाँ तक कहता है कि अगर मैं उस दौर में होता तो मैं अमीर मुआविया मुगीरा बिन शुअबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम के खिलाफ जो है वो तलवार निकाल लेता। इस हद तक ये बातें कहता है कि तलवार निकालना ये कुरान और हदीस कहता है, ये कुरान और हदीस सुनाता है। सहाबा इकराम के खिलाफ तलवार निकालने की बात ये कुरान और हदीस के अंदर है, सहाबा इकराम के को बागी कहना ये कुरान और हदीस है, ये कुरान और हदीस सुनाता है। ये अहले हदीस की बुग़्ज़ में इतना आगे निकल चुके हैं, अहलुल हदीस की बुग़्ज़ के अंदर, कि ये गुमराह लोगों को हिदायत याफ्ता ठहराते हैं और अहलुल हदीस को उनसे भी मतलब के बदतर समझते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने यहूद की एक अलामत बयान की थी। अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 51, आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अलम तर इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युमिनून बिल जिब्ति वत तागूत व यक़ूलून लिल लज़ीना कफ़रू हाउलाई अहदा मिनल लज़ीना आमनू सबीला। जो यहूदी लोग कहते थे, यहूदी लोग जो थे वो क्या कहते थे कि काफर लोग जो हैं, कुफ़ार मक्का जो हैं, वो ईमान वालों से ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं, और ये भी मिर्जा इंजीनियर जो साहबा इकराम का गुस्ताख है, जो मुत्तफ़िका तौर पे एक गुमराह है, जो शियत की तबलीग करता है, उसको जो है वो अहलुल हदीस के खिलाफ ज्यादा हिदायत याफ्ता समझते हैं, कहते हैं वो कुरान और हदीस सुनाता है। और अहलुल हदीस की हक्कानियत तो रोज़े रोशन की तरह अल्हम्दुलिल्लाह रोशन है। और इसके मुतालिक मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं अहलुल हदीस की हक्कानियत के लिए, जरा वो भी सुन लें। तो मैं बार बार कहता हूँ अहले हदीस में कुछ खूबियां भी हैं भाई। सबसे बड़ी बात बिदअती नहीं होते, और हमारे देवबंदियों में बिदात मार्केट में बोलो भाई होलसेल के हिसाब से मिलेंगी आप, सारे नहीं लेकिन रेशो बहरहाल बहुत ज़्यादा है। तो ये उनकी खूबी है, तो जो है वो तो मानना पड़े। कबर परस बिल्कुल भी नहीं होते, देवबंदी भी नहीं होते, लेकिन होते भी हैं। मिलेंगे आपको मुस्टंडों की तरह बैठे हुए होंगे कब्रों पे। जी, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने तो देवबंदियों को तो बिदाती भी कह दिया है, देवबंदियों को कबर परस्त तक भी कह दिया है, लेकिन अहलुल हदीस को उसने क्या कहा? अहलुल हदीस बिदात से पाक हैं, अहलुल हदीस कबर परस्त बिल्कुल नहीं है। देवबंदियों के अंदर बिदात होलसेल के हिसाब से दस्तयाब हैं, इसी तरह कबर परस्त भी वो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस की हक्कानियत गैरों से भी आया हो गई, तुम्हारे अपने ही घर से हमारी हक्कानियत आया हो गई, घर को आग लग गई घर के ही चराग से। और इसके बाद जिस मिर्जा की तुम तारीफें करते हो, वो मिर्जा क्या कहता है अहलुल हदीस के मुतालिक, जरा वो भी सुने। अक्सर ये अपने लेक्चर्स में कहता हूं कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत दुनिया में अगर किसी मकबा फिक्र के लोगों के साथ रखता हूं तो वो अहले हदीस है। बाकी सबको मैं मुसलमान समझता हूं, उनसे भी मोहब्बत रखता हूं, लेकिन एज कंपेयर टू बाकियों के। जी, तो मिर्जा भी यही कहता है कि मैं अहलुल हदीस को ज्यादा पसंद करता हूं, और एक क्लिप के अंदर वो कहते हैं कि आई लव अहले हदीस, मैं अहले हदीस से मोहब्बत करता हूं, क्योंकि अहलुल हदीस के सामने जब अल्लाह और उसके रसूल का फरमान आ जाता है तो वो उसको तस्लीम कर लेते हैं, वो चौंके चुनाचे नहीं करते। मिर्जा इंजीनियर भी तस्लीम करता है कि अहलुल हदीस हक पर हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी ये तस्लीम करता है अहलुल हदीस के अंदर बिदअत नहीं है, अहलुल हदीस के अंदर शिरक नहीं है। जब शिरक और बिदअत से अहलुल हदीस पाक हैं तो फिर किस वजह से अहलुल हदीस गुमराह हुई? किस बुनियाद पर तुम अहलुल हदीस के खिलाफ बोलते हो, अहलुल हदीस के को जो है वो टारगेट बनाते हो, किस बुनियाद पर? और तुम कहते हो कि मिर्जा इंजीनियर कुरान सुनाता है, और अहलुल हदीस अब क्या कहते हैं कि अब जो है वो कुरान और हदीस तुम खुद नहीं पढ़ो बल्कि उलमा से सीखो, ये करो। हमने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की, हम तो अभी भी कहते हैं कि भाई खुद कुरान और हदीस पढ़ो, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ो, समझो, कुरान को पढ़ो, सही अहादीस को पढ़ो, समझो, ताकि तुम पर वो तमाम अय्यारियां, वो तमाम मक्कारियां, वो तमाम गलत बातें आया हो जाए जो तुम उलमा से सुनते हो। और कुरान से कौन मना करता है? कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने से कौन रोकता है? जरा वो भी सुने।
मोहम्मद लुकमान करक से मैं रमज़ानुल मुबारक में कुरान तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ, आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। आम बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाज़ा खुलेगा। मेरी जाने मन, कुरान करीम इतना लावारिस नहीं है कि आप इसको बगैर कुरान के माहिर के पढ़ना शुरू कर दें। डॉक्टरी मेडिकल की किताब आप बगैर माहिर के नहीं पढ़ते, तो कुरान करीम बगैर माहिर के आप क्यों पढ़ेंगे? तर्जमे आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए है। जी, तो आपने सुन लिया कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, जो देवबंद मकतबा फिक्र का एक आज के दौर में एक बड़ा नाम है, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, कुरान को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ना, वरना गुमराह हो जाओगे, गुमराही के दरवाजे खुलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। हम कहते हैं कि ये कुरान हिदायत के लिए नाज़िल हुआ है, कुरान पढ़ने से हिदायत मिलेगी। आज के दौर में गैर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, अंग्रेज ये कुरान को पढ़कर, कुरान को समझकर मुसलमान होते हैं, और तुम जो है वो कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ने से मना करते हो। जो मुसलमान हो वो न पढ़ें, जो हिंदू हो वो पढ़कर मुसलमान होते हैं, और मुसलमान पढ़कर नऊज़ बिल्लाह गुमराह हो जाएंगे। ऐसी बातें तो तुम करते हो और टारगेट अहले हदीस को बनाते हो। और हाँ, तुम कहते हो कि मिर्जा इंजीनियर कुरान सुनाता है, कुरान और हदीस सुनाता है। तो भाई आप ये जो बातें कर रहे हैं, ऐसे तो मिर्जा कादियानी भी कुरान से दलाइल देता था, फिर उसको भी नबी मान लो, तुम मसीह मऊद मान लो, क्यों नहीं मानते? वो भी कुरान से दलाइल देता था, लेकिन कुरान का गलत मफहूम निकालता था, गलत मतलब निकालता था, अपनी मनमानी करता था, ठीक है। और वो भी मुनाजरा नहीं करता था, मुबाहिले नहीं करता था। जब मुबाहिला हुआ तो कैसे खत्म हो गया, वो तो सारी दुनिया ने देखा। और इसके बाद जो है आप कहते हो कि मिर्जा इंजीनियर कुरान और हदीस सुनाता है, लेकिन तुम्हारा ही एक देवबंदी मौलाना अब्दुल लतीफ सफदर साहब, वो क्या कहते हैं इस इंजीनियर के खिलाफ, वो भी सुने। मोहतरम सामीन है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से बढ़कर एतमाद के साथ झूठ बोलने वाला शख्स आपने आज तक नहीं देखा होगा। जी, तो आपने सुन लिया कि मौलाना अब्दुल लतीफ सफदर साहब वो क्या कहते हैं कि मिर्जा इंजीनियर झूठ बोलता है, वो झूठा है, झूठी बातें करता है। और ये शख्स कहता है कि मिर्जा इंजीनियर कुरान और हदीस सुनाता है। भाई जरा आपस में तो आप इत्तेफाक कर लो, फिर अहलुल हदीस को भी निशाना बना लेना, ठीक है। अहलुल हदीस की हक्कानियत अल्हम्दुलिल्लाह रोज बरोज रोशन होती जा रही है। अहलुल हदीस की हक्कानियत रोज रोशन की तरह वादे है। तुम्हारे झूठ हर वक्त लोगों पर अया होते जा रहे हैं, और अब तुम इतने बौखलाहट का शिकार हो गए हो कि तुम दावत फिक्र को नहीं समझ रहे हो, तुम दावत फिक्र को एक चैलेंज समझ रहे हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम की तरफ तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।